A very warm welcome and good evening to all respected dignitaries, learn advocates, dear students, and participants and joins us today. On behalf of Lawyer Development Forum Pune, in association with Parivar NGO, and Advocate Rutuja Jain Sheke, extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. Lawyers Development Forum is a platform built with a vision of nature's guide and empower the legal fraternity through academic excellence, practical exposure, and meaningful initiatives. At the moment, it is only fitting to acknowledge the visionary behind this platform, Dr. Rajendra Anbhule, sir, the founder of LDF, and whose foresight and dedication laid the foundation of an organization that continues to inspire and unflipped of countless advocates and law students. His vision has transformed LDF into a thriving community of growth and opportunities. We are equally honored to be associated with Parivar NGO and organizations committed to strengthening relationships and serving society through emotional support, legal counseling, mediation, and community awareness initiatives. A special mention to Advocate Preeti Singh Pardeshi ma'am, President of Parivar NGO, whose leadership and dedication towards social welfare and community service truly reflect compassion in action. His efforts continue to create a meaningful impact in the lives of many. We are deeply grateful to our organizers and leadership team whose consistent efforts make such a impactful sessions possible, and to all our attenders. Yours presence today reflects your commitment to learning and excellence in the field of law. We are truly delighted to have you with us. Let us begin this enriching sessions with great enthusiasm and open the mind. सर्व परिवार एनजीओ अँड लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम तर्फे यांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त विद्यमाने खास वकील वर्गांसाठी आपण झिरो मोबाईल डिस्ट्रॅक्शन हे सेशन आयोजित करतोय. सगळ्यांना आज म्हणजे वकिलांसाठी एनी अदर्स सगळ्यांसाठी मोबाईल किती इम्पॉर्टन्स आहे. 2 मिनिटासाठी जरी आपण मोबाईल घेतला तरी आपल्याला थोडंसं डिस्ट्रॅक्शन्स होतं. आपण थोडे रील्स बघणं, स्क्रोल करणं, इन्स्टा ओपन करणं. तर हे डिस्ट्रॅक्शन होऊ नये. आपण आपल्या करिअरसाठी किंवा अजून वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज कशा आपल्याला फाइंड आउट करता येतील आणि तसेच आपल्याला जे काही आपलं लक्ष विचलित होऊ नये आणि मानसिक शांतता मिळावी, तर त्यासाठी आपण एक सेशन आयोजित करतोय झिरो मोबाईल अट्रॅक्शनचा. तर स्पेशल मी इन्व्हाइट करते मनोज शर्मा, श्री मनोज शर्मा सर. हे एक पीक प्रोडक्टिव्हिटी कोच आहेत. Amazon बेस्ट सेलिंग ऑथर आहेत. 4 वर्षाचा त्यांना एक्सपिरियन्स आहे. 3000+ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स त्यांनी दिलेल्या आहेत. सो या सगळ्या माध्यमातून आपल्याला ते टाइम मॅनेजमेंट कसं करावं, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, बर्नआउट प्रूफ, इमोशनली इंटेलिजन्स अँड अनवेविंग फोकस, की आपल्या एम साठी आपण कसा फोकस करावा, यासाठी ते आपल्याला आज मार्गदर्शन करतील. सो आय हम्बली रिक्वेस्ट टू मनोज शर्मा सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन विथ झिरो मोबाईल अट्रॅक्शन distractions and guide our lawyers, brothers and sisters. Thank you. मॅम, एकच मिनिट घेऊ फक्त Yes, मध्ये. yes, yes, yes. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट प्रीतीसिंह परदेशी. आजचं आपलं सेशन सर्वांना माहिती आहे की किती जास्त इम्पॉर्टंट आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही. मनोज शर्मा सर आपल्यासाठी इथे फक्त हे सांगणार आहेत की आपल्याला मोबाईलचा वापर करायचा आहे, पण त्याचं डिस्ट्रॅक्शन होऊ द्यायचं नाहीये. आणि आजचं जे सेशन आहे ते हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये असेल, यासाठी मी मध्ये थोडंसं इंटरप्ट केलं. तर ऋतुजा मॅम, प्लीज तुम्ही कंटिन्यू करा. थँक्यू सो मच. Yes. So मनोज शर्मा सर, आपण स्टार्ट करू शकता सेशन. Thank you, Rituja ji and Preeti ji.
and Parivar NGO and Lawyers Development Forum for organizing this session. पहले भी आपने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे and glad that it helped lots of people. So today we are conducting the workshop on zero mobile distraction. और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी हम करेंगे 2 मिनट का विच विल मेक अवर माइंड मोर काम एंड मोर रिसेप्टिव. सो एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, back straight, and become aware of your breath. Breathe going in and coming out from the nose. Now become aware while breathing in. Is your belly coming out? Is it going in? Or is there no movement? Just become aware of that. Become aware if you are breathing deep or shallow, if you are breathing slow or fast. Now take a deep and slow breath in. And relax with breath out. इसको 3 बार करेंगे. And let your belly come out while breathing in. Then slowly open your eyes. धीरे से आंख खोलेंगे. And share in the chat कितने लोग ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं ये एक्टिविटी करने के बाद. Sir, they are on mute, sir. They can't talk. आप चैट में शेयर कर सकते हैं. You can type yes, you can type me. You can raise your hand also. Yes, sir. We are fit. Yes. तो ये एक फंडामेंटल चीज है डिस्ट्रैक्शन के बारे में जो हमको समझनी है कि जब हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं तब चांसेस कम होते हैं डिस्ट्रैक्शन के. ठीक है. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मोबाइल स्क्रॉल करते हैं टू फील रिलैक्स्ड, रिलैक्स फील करना है उसके लिए स्क्रॉलिंग करते हैं. ठीक है. तो ये चीज हमको समझना जरूरी है कि जितना ज्यादा हम रिलैक्स स्टेट में रहेंगे उतना हमारा नीड कम होगा मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का, मोबाइल स्क्रॉलिंग का. ठीक है. तो ये एक फंडामेंटल चीज है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. जो सिंपल प्रैक्टिस अभी हमने करी इसको भी आप कर सकते हो टू फील रिलैक्स्ड. नाउ आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन. तो आज हम जीरो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वर्कशॉप में हैं. माई सेल्फ मनोज शर्मा, आई एम अ माइंड सिंप्लीफायर. तो आज मैं आपको हेल्प करूंगा टू सिंप्लीफाई कि हम कैसे फोकस्ड रह सकते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को. मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि काम कर रहे होते हैं और नोटिफिकेशंस बीच में चेक करने लगते हैं, अनकॉन्शियसली इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि अभी तो कुछ और काम करना है। कितने लोग एक रील देखना स्टार्ट करते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब 30 40 50 हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है दैट यू लूज फोकस इन द मिडिल ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है बट बीच में फोकस लूज हो जाता है, एंड यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड विदाउट एक्चुअली डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हमको खुद से करना है, दैट आर यू यूजिंग द मोबाइल और मोबाइल इज यूजिंग यू। ये एक चीज हमको समझना जरूरी है कि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल हमें यूज कर रहा है। क्योंकि कितनी बार हम अनकॉन्शियसली ऐसी चीजें करते हैं जो हमको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो ये एक चीज में हमको क्लियर होना जरूरी है, और ये समझना हमको जरूरी है कि देयर हैज बीन स्टडीज आल्सो, एवरेज पर्सन चेक्स देयर फोन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन अ डे। ठीक है, और ऐसा नहीं है दैट वी आर वीक। ठीक है, बट ये इसलिए हो रहा है बिकॉज $1 बिलियन कंपनीज ने हायर किए हैं बेस्ट ऑफ द न्यूरो साइंटिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, एआई सिस्टम्स टू हाईजेक अवर अटेंशन। ये जो डिवाइस है मोबाइल है, इसके पीछे बहुत न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने अपना दिमाग लगाया है कि कैसे ब्रेन को हैक किया जाता है। उनको पता है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, और उसको कैसे हैक कर सकते हैं। वो सारी चीजों को यूज करके ये डिवाइस बनाया गया है मोबाइल, विच इज यूजिंग अस। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, जिस वर्ल्ड में हम अभी हैं 21st सेंचुरी, डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी बहुत सारे कंपनीज के लिए। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वो अपना ट्राई कर रहे हैं बेस्ट टू गेट योर अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉन्शियसली एफर्ट डालने होंगे टू सेव अवर अटेंशन, टू सेव अवर टाइम, ताकि हम उसको हमारे लाइफ को बेहतर करने के लिए लगा सके। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है दैट दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग टुडे। ठीक है, और इस तरह के न्यूज हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में। गुजरात में एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, शी गोट एडिक्टेड टू द स्क्रीन मोबाइल, और उससे रोकने के लिए उसके पेरेंट्स को 4 बाउंसर्स लगाने पड़े, और इस तरह के न्यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज में हमको एकदम क्लियर हो जाना है कि ये जो डिवाइस है मोबाइल, सोशल मीडिया, इट्स अडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये चीज में जब हम क्लियर रहेंगे तब फिर हम सावधानी से इसको यूज करेंगे। ये डिवाइस जिस तरह से बनाया गया है, इट्स अडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, वो होता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस डोपामिन ट्रैप। ठीक है, डोपामिन एक हार्मोन है विच इज रिलेटेड टू द हैप्पीनेस। ठीक है, डोपामिन जब जनरेट होता है तो देन वी फील मोर हैप्पी, और जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तब भी ये डोपामिन जनरेट होता है हमारे अंदर। ठीक है, फोन की वजह से इस क्रिएट्स इंस्टेंट स्टिमुलेशन। ठीक है, जीरो बोर्डम एंड कांस्टेंट नोवेलिटी, हमेशा कुछ ना कुछ नया है उसमें, तो हम बोर नहीं होते हैं, और एक वो स्टिमुलेशन होता रहता है। ठीक है, तो उससे डोपामिन जनरेट होता रहता है और वी गेट इनटू दिस डोपामिन ट्रैप। फिर हमको स्टॉप करने का मन नहीं करता है, फिर कुछ और करने का मन नहीं करता है। ठीक है, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यही चीजें समझ के ये डिवाइस बनाया गया है। ठीक है, जो एप्स हम यूज करते हैं, दे लर्न हाउ टू वेपनाइज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे वेपनाइज करना है, कैसे उनके फायदे के लिए यूज करना है, दैट इज समथिंग विच दे अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। नाउ हाउ मेनी आवर्स आर यू लूजिंग एवरी डे इन मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस? सब लोग अपने अपने नोटबुक में, जहां भी आप लिख सकते हैं, लिखिए हाउ मेनी आवर्स आर यू लूजिंग एवरी डे इन मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसको लिखना है। ठीक है, सो एवरीवन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। रोज आप कितने घंटे लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस? एंड राइट डाउन व्हाई डू यू नीड टू रिमूव मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हमको क्यों हटाना है? उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या आपकी लाइफ में चेंज होगा? राइट डाउन योर आंसर्स। आज आप इस वर्कशॉप में हैं तो क्या रीजन है?
क्या आप चेंज करना चाहते हैं बाय रिमूविंग द मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस? जो टाइम अभी लूज हो रहा है, हाउ इट विल हेल्प यू? राइट डाउन योर आंसर्स इन योर नोटबुक. बिकॉज करियर पे फोकस करना चाहिए. Yes. सब अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे. सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने से इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, बट जब आप इसको लिखेंगे, जब ये आपके सामने होगा, देन इट इज मोर इफेक्टिव. और ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है, और ये समझना भी जरूरी है दैट व्हाट इज द रियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, हमको लगता है इट्स जस्ट अबाउट द टाइम, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द टाइम. ठीक है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा अटेंशन स्पेन डिस्ट्रॉय होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, क्रिएटिविटी हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल कंट्रोल पे इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी पे इंप्रूव होता है, और डीप थिंकिंग पे इंप्रूव होता है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम, इट इज इम्पैक्टिंग अवर, कैसे हमारा माइंड फंक्शन करता है, कैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारी चीजों पे इसका इम्पैक्ट होता है. ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट्स अवर ड्रीम्स, हेल्थ एंड रिलेशंस. ठीक, कितने लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं है? कितने लोगों के साथ होता है कि फैमिली के साथ बैठे हुए हैं बट मोबाइल में लगे हुए हैं सब लोग. ठीक है, सो वी आर नॉट स्पेंडिंग द टाइम, क्वालिटी टाइम विद द फैमिली. ठीक है, तो सारी चीजें इससे इम्पैक्ट होती है. कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है ग्रोथ के लिए, बट मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में टाइम जा रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट होती है. सो ये चीज के भी हमको अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है दैट व्हाट इज द रियल कॉस्ट. ठीक है, तो ये चीज को समझ के टुडे आई विल शेयर दीज 3 सिंपल एंड पावरफुल स्टेप्स ऑफ जीरो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सिस्टम विद यू, जो कि हमको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव इन दिस एरिया. ठीक है, 2018 में मैं भी ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था. फॉर 3 years आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, और उस एक्सपीरियंस से देन आई एम हेल्पिंग अदर्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, बिकॉज एक मेरा डीप डिजायर है टू कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर वर्ल्ड, and that I believe will happen through Stronger Bharat, because world has already seen the benefits of meditation, yoga, Ayurveda, and there is much more which needs to come out. And for that we need to become a powerful economy, and that is going to happen through super productive and fulfilled founders and professionals. So that is where I am focusing on, ताकि हम सब और ज्यादा productive and fulfilled रहे, and we all can contribute more towards this mission of Stronger Bharat for a better world. So now let's get into this zero mobile distraction system. ठीक है, और एक चीज हमको यहाँ पे ये समझना जरूरी है दैट एवरीवन गेट्स 24 आवर्स ओनली. सबको 24 घंटे ही मिलते हैं. सम यूज इट इन फोकस, मेनी लूज इट इनटू डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, बट दे एंश्योर दैट दे आर यूजिंग इट विद फोकस. ठीक है, एंड दे आर नॉट लूजिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन. तो वही चीज हमको भी करनी है, और इस वर्कशॉप में उसमें हम काम करेंगे. दिस इज ऑल्सो वन ट्रूथ विच मोस्ट पीपल मिस. जब हम डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं तो हमको लगता है कि हमारा विल पावर का प्रॉब्लम है, विल पावर हमारा उतना अच्छा नहीं है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. इट्स नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट द सिस्टम. हमको ऐसे सिस्टम्स बनाने की जरूरत है जो हमको हेल्प करते हैं टू बी फोकस्ड. एंड इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन. कई बार हमको लगता है कि मोटिवेशन की कमी है, बट दैट इज नॉट द रियल रीजन. ठीक है, हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स और फोकस रिचुअल्स बनाने होंगे जो कि हमको हेल्प करेंगे. बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, ये डिवाइसेस कॉन्शियसली इस तरीके से क्रिएट की गई है विच इज एडिक्टिव इन नेचर. तो ये आपका विल पावर का या मोटिवेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दैट डिवाइस इटसेल्फ इज एडिक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो हमको कुछ सिस्टम्स, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाने होंगे जो हमको सेव कर सकते हैं फ्रॉम दैट एडिक्शन. ठीक है, अब इस डिस्ट्रैक्शन लूप के बारे में समझते हैं. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है ट्रिगर से. ठीक है, पहले कोई ट्रिगर होता है, उसकी वजह से वी गेट इनटू दिस लूप ऑफ डिस्ट्रैक्शन. उसके बाद में वी गेट इनटू माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस. फिर एक टास्क से हम दूसरे टास्क पे स्विच करते रहते हैं. देन वी गेट इनटू प्रोक्रास्टिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज को डिले करते जाते हैं. एंड देन वी फील गिल्टी, फिर हम गिल्टी फील करते हैं, और ये लूप चलता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना जरूरी है दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिगर. ठीक है,
तो इस पे हमको काम करने की जरूरत होती है। जो ट्रिगर्स है उस पे अगर हम काम करेंगे तो ये लूप स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, एंड विल बी एबल टू अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। एंड व्हेन यू वांट टू बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मर, तो ये एक चीज हमको समझनी जरूरी है दैट वी कैन नॉट फाइट विद द डिस्ट्रैक्शन, दैट डजंट वर्क, ठीक है। वी कैन नॉट फाइट विद द डिस्ट्रैक्शन, बट हमको ऐसा डिजाइन करना है हमारा दिन ताकि डिस्ट्रैक्शंस उसमें एंटर ना हो। एक बार डिस्ट्रैक्शंस आ गए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो हमको डिजाइन इस तरह से करना है हमारा दिन ताकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस आए ही नहीं। दैट इज हाउ हाई परफॉर्मेंस वर्क, ठीक है। तो एक पहला जो चैलेंज होता है इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन, दैट इज द एक्सटर्नल ट्रिगर्स, ठीक है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन लूप स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हमको टेक केयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको हमारा आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह से बनाना है ताकि उसमें ये ट्रिगर्स ना हो, ताकि डिस्ट्रैक्शंस हमारा एंटर ही ना करे, ठीक है। और जब हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले हमको ये समझना है कि हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ आर यू कनेक्टेड विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्या चीज है जो हमको कनेक्ट करती है विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट? So many things, sir. Hello, sir. This is Advocate Supriyara. I think when Yes. we build the airflow, which is connecting all of us, especially the network is also connecting us, Wi-Fi connections and these kind of techniques. यस, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमको समझना जरूरी है दैट हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमको कनेक्ट कर रहे हैं विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। 5 सेंसेस क्या है? आंख है जिससे हम देखते हैं, कान है जिससे हम सुनते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, स्किन से टच होता है एंड टंग से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस है जो हमको कनेक्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स, ठीक है। जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो स्पेशली ये जो 2 सेंसेस हैं, आईज एंड ईयर्स, हमारी आंख और हमारे कान, ये 2 सेंसेस हमको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे मोबाइल से। तो जो भी ट्रिगर्स आएंगे, ठीक है, ये 5 सेंसेस हमको कनेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो जो ट्रिगर्स भी आएंगे, जो डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, वो भी ये 5 सेंसेस के थ्रू ही आएंगे, ठीक है। और मोबाइल के केस में इट कम्स थ्रू आईज एंड ईयर्स, ठीक है। हम कुछ देखते हैं या हमें कुछ सुनाई देता है, उसकी वजह से ट्रिगर होता है और फिर हम डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है टू ऑप्टिमाइज दीज सेंसेस, हमको ये सेंसेस को ऑप्टिमाइज करना होगा, तब हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमको जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है उसको हटाना होगा, वी नीड टू रिमूव द एक्सटर्नल ट्रिगर्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक इट इनविजिबल, ठीक है। आंख से जब हमको मोबाइल दिखाई देता है दैट इज अ ट्रिगर, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी विजिबल। जब आपको काम करना है, फोकस काम करना है, तो मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए। मोबाइल अगर दिखेगा तो ट्रिगर होगा और डिस्ट्रैक्शन लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन सिंपल एंड वेरी पावरफुल थिंग विच वी कैन डू, ठीक है। मोबाइल को हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहां पे वो हमको दिखाई ना दे, ठीक है। बैक साइड पे रख सकते हैं, डोर में रख सकते हैं, पॉसिबल है तो दूसरे रूम में रख सकते हैं या बैग में रख सकते हैं, ठीक है। बट आंख के सामने नहीं होना चाहिए। आंख के सामने होगा तो कब आपके हाथ में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर को हमको हटाना है, मेक इट इनविजिबल, इट शुडंट बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। फिर दूसरा ट्रिगर होता है एक्सटर्नल ट्रिगर, वो है साउंड, ठीक है। नोटिफिकेशंस का साउंड होता है जो हमको सुनाई देता है, वहां से भी फिर एक ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, देन यू स्टार्ट चेकिंग इनटू नोटिफिकेशंस, और उसकी वजह से जो आपका फोकस है वो लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि until unless समथिंग वेरी अर्जेंट या इमरजेंसी वाला कोई नोटिफिकेशन है, इज मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, तो साउंड को ऑफ कर देना है। फोकस काम कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लिया आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर, उस टाइम पे नोटिफिकेशंस जो भी चेक करना है, मैसेजेस चेक करना है, वो चेक कर लिया, ठीक है। सो दैट इज वेरी क्रूशियल टू स्विच ऑफ द साउंड नोटिफिकेशंस, ठीक है। फिर तीसरा एक और वे है टू डिलीट द डिस्ट्रैक्टिंग एप्स, ठीक है। सो नाउ एवरीवन आस्क योरसेल्फ, वो कौन से एप्स हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा लूज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। और कौन से ऐसे एप्स हैं जिसमें आपका ज्यादा टाइम लूज हो रहा है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसकी वजह से आपको हो रहा है।
write down the name of those apps in your notebook. And now we will do the implementation. ठीक है, तो in the next 1 to 2 minutes let's implement this. ठीक है, कोई भी एक ऐप जिसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, डिलीट दैट ऐप, अनइंस्टॉल दैट ऐप. एवरीवन लेट्स डू दिस. अगर आपके साउंड नोटिफिकेशंस ऑन है तो राइट नाउ जस्ट स्विच ऑफ द साउंड नोटिफिकेशंस. जब बहुत जरूरी होगा तब उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, बट यू नो कि उसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम लूज हो रहा है. सो राइट नाउ जस्ट डिलीट दैट ऐप. अगर वो ट्रिगर ही नहीं रहेगा तो उसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन लूप स्टार्ट नहीं होगा. सर थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ. कैन वी जस्ट गो अहेड विद द टिप्स एंड ऑल, और हाउ? साथ में हम इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे, बिकॉज लाइक साथ इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल मूव फॉरवर्ड. Yes, we have sound off notification, sir. We have switched off. Yes, silenced. मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल क्यों नहीं, हम लास्ट में लेंगे. ओके, ठीक है, ठीक है. इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक. और ये नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं होता है, तो साथ के साथ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो दैट इज गुड. और क्यों नहीं हम लोग लास्ट में ले सकते हैं. ओके. और बाद में और भी जो एप्स है या नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ कर सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग विच कैन हेल्प अस टू रिमूव द एक्सटर्नल ट्रिगर्स. ठीक है, और ये एक चीज हमको समझना जरूरी है. देयर हैज बीन स्टडीज आल्सो दैट इट टेक्स 15 to 25 मिनट्स टू रीगेन फोकस आफ्टर इंटरप्शन. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं वही टाइम आपका लूज हो रहा है. एक बार मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में गए तो वापस फोकस में आने के लिए 15 से 25 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, तो ये चीज हमको समझना जरूरी है कि वो इंटरप्शंस को हमको हटाना है. अगर 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए भी आपका इंटरप्शन हुआ तो फिर से फोकस में आने के लिए 15 से 25 मिनट्स लगेगा. ठीक है, तो वो इंटरप्शन को नहीं आने देना है, उसके लिए हमको ये ट्रिगर्स को हटाना जरूरी है. ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिस्ट्रैक्शन इज जस्ट अनदर वे आवर माइंड अटेम्प्ट्स टू डील विद पेन. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक एस्केप है माइंड के लिए टू एस्केप फ्रॉम द पेन. ऑलरेडी कुछ पेन है, कुछ डिस्कम्फर्ट है हमारे अंदर, और उसको अवॉइड करने के लिए हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस में जाता है. सो देयर इज ऑलवेज अ इंटरनल ट्रिगर बिफोर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. मोबाइल का जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है उससे पहले कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक इंटरनल ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हम उस डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं. ठीक है, तो ये रूट पे भी हमको काम करना जरूरी है. जो इंटरनल ट्रिगर्स है उस पे भी हमको काम करना जरूरी है. एक्सटर्नल ट्रिगर्स तो हम हटा ही लेंगे जैसे हमने डिस्कस किया है, बट साथ में जो इंटरनल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं उसका भी हमको टेक केयर करना जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड चैलेंज इन टर्म्स ऑफ फोकस विच इज इंटरनल ट्रिगर्स. ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए दिस इज वन सिंपल टेक्निक, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट टेक्निक, एसईटी, जिसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें द फर्स्ट स्टेप इज टू लुक फॉर द डिस्कम्फर्ट, द इमोशन दैट प्रेसीड्स द डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में जाने से पहले हमको कैसा फील हो रहा था, क्या इमोशन था, क्या डिस्कम्फर्ट था, वो चीज को हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. किसी के लिए एंजाइटी हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो नाउ रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में गए उससे पहले आपको कैसा फील हो रहा था, एंड जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक.
लास्ट टाइम जब भी आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में स्क्रॉलिंग में टाइम गया, उससे पहले आप कैसा फील कर रहे थे? एंड जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप में राइट डाउन द ट्रिगर्स लाइक एन ऑब्जर्वर, लाइक अ स्टोरी. ठीक है, उस समय पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? लाइक आपने मोबाइल देखा, ठीक है, मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करने का आपका मन हुआ, देन यू गेट इनटू स्क्रॉलिंग. ठीक है, तो ये जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है उस टाइम पे, उसको लिखना है लाइक अ ऑब्जर्वर, लाइक अ थर्ड पर्सन, एक स्टोरी के फॉर्म में, कि क्या उस टाइम पे एक्चुअली में हो रहा था. एंड देन द थर्ड स्टेप इज एक्सप्लोर योर सेंसेशंस विद क्यूरियोसिटी. ठीक है, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती है, उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशंस होते हैं, फिजिकल सेंसेशंस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम फिंगर्स को एक डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, कुछ लोग पैर को मूव करते हैं, कभी कभी स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं, कभी पेन होता है चेस्ट में और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ऑल दीज आर डिफरेंट सेंसेशंस जो कि रिलेट होते हैं किसी ना किसी इमोशन से. ठीक है, तो उस टाइम पे हमको जस्ट एक्सप्लोर करना है दी सेंसेशंस विद क्यूरियोसिटी, जस्ट ऑब्जर्व करना है, जस्ट बी अवेयर कि देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह के सेंसेशन हो रहे हैं. ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज 10 मिनट रूल जस्ट बिफोर द ट्रांजिशनिंग मोमेंट. ठीक है, जब हम मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, स्क्रॉल करने वाले होते हैं, जस्ट बिफोर द ट्रांजिशनिंग मोमेंट एक 10 मिनट का रूल हमको बनाना है. जस्ट टेल योर सेल्फ दैट आई विल डू दिस आफ्टर 10 मिनट्स. जो भी मन कर रहा है, व्हाट्सएप चेक करने का, इंस्टाग्राम चेक करने का, रील्स देखने का, यूट्यूब देखने का, जो भी मन कर रहा है, जस्ट टेल योर सेल्फ, जस्ट टेल योर माइंड कि इसको हम 10 मिनट बात करते हैं. जस्ट उसको डिले करना है. नॉर्मली वी ट्राई टू फाइट विद द माइंड विच डजंट वर्क. ठीक है, सिंपली हमको उसको डिले कर देना है, 10 मिनट रूल बना लेना है. ठीक, जब भी इस तरह का थॉट माइंड में आता है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग करना है, माइंड को बोलना है देख इसको हम 10 मिनट के बाद करते हैं, जस्ट बिफोर दैट ट्रांजिशनिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हैपन दैट आफ्टर 10 मिनट्स यू विल नॉट फील द नीड टू गेट इनटू दैट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वहां पे रियल नीड है ही नहीं. ठीक है, we are getting into that is distraction because of the internal trigger, that is discomfort, the emotion. ठीक है, तो 10 मिनट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वो जरूरत फील होगा ही नहीं करने का, क्योंकि वहां पे कोई रियल जरूरत है ही नहीं. इट्स जस्ट वी आर गेटिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, कभी अगर होता है 10 मिनट के बाद भी, अलाउ योरसेल्फ टू डू दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, बिकॉज दीज सेंसेशंस विल आल्सो गो अवे. ठीक है, ये जो सेंसेशंस भी है उस इमोशन से रिलेटेड, वो भी टेम्परेरी है. जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट दीज सेंसेशंस विल आल्सो गो अवे, और उसके साथ में जो हमारा नीड था स्क्रॉल करने का, वो भी चला जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वन सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक विच कैन हेल्प अस टू अवॉइड गेटिंग इनटू द मोबाइल डिस्ट्रैक्शन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंटरनल ट्रिगर्स. ठीक है, इसके लिए एक सिंपल फोकस टेस्ट हम करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, व्हेन आई से स्टार्ट, देन फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट जस्ट try to focus on your breath. So everyone close your eyes and you can start. Just try to focus on your breath.
नाउ स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंख खोलेंगे एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, पिछले 1 मिनट में 60 सेकंड में कितने टाइम के लिए आप ब्रीथ पे फोकस कर पा रहे थे, कितने सेकंड्स के लिए, एंड जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. इन द लास्ट 1 मिनट, इन द लास्ट 60 सेकंड अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम के लिए आप फोकस कर पा रहे थे अपने ब्रीथ पे, एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ फोकस, लेवल ऑफ एफिशिएंसी वी आर वर्किंग राइट नाउ. ठीक है, एंड इट इज हैपनिंग थ्रू आउट द डे. हमको लगता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल फोकस प्रोडक्टिव टाइम इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ फोकस. ठीक है, तो ये चीज हमको समझना जरूरी है, एंड वी कैन चेंज दिस, वी कैन इंप्रूव दिस. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट टू इंप्रूव आवर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस. ठीक है, तो काम कर रहे होते हैं, दिमाग में दूसरे थॉट्स आ रहे होते हैं, और एक्चुअली थॉट्स की वजह से हमारे इमोशंस इंपैक्ट होते हैं. सो देयर हैज बीन स्टडीज की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स गेट 70 to 80,000 थॉट्स एवरी डे. ठीक है, एक दिन में 70 से 80,000 थॉट्स आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर 80 to 90% आर ऑटोमेटिक एंड अनवांटेड एंड नेगेटिव थॉट्स, जो कि नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से फिर हम डिस्ट्रैक्शंस पे जाते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को डिले करते हैं. ठीक है, तो जब हम थॉट्स पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस आल्सो एंड बी फोकस्ड. ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव द मंकी माइंड, दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, व्हिच कीप जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर. ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. ये ऐसे ही रहेगा until unless we do something about it. ठीक है, तो ये चीज हमको समझना जरूरी है, दैट देयर इज अ नीड टू ट्रेन आवर माइंड टू बी फोकस्ड. अदरवाइज उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है टू कीप जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर. ठीक है, सो वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड टू बी फोकस्ड. ठीक है, और like when we look at the successful people, be it any field, business, sports, or top executives, professionals, there has been studies on successful people that they get 7 to 8,000 thoughts every day. So see the level of difference in the efficiency, right? Were they born like that? No, but they have trained their mind to be focused. और वो हम भी कर सकते हैं. ठीक है, we just need to train our mind, and that is a possibility. ठीक है, एक दिन में चेंज नहीं होगा, बट वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन बाय ट्रेनिंग आवर माइंड. ठीक है, और इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है, जिसके लिए आपको कोई अलग से टाइम भी नहीं देना है. यू कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस इन योर लाइफ. ठीक है, तो इसके लिए सिंपली एक कोई एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है जो हम रोज करते हैं, 10 से 15-20 मिनट का. ठीक है, जैसे रोज हम खाना खाते हैं, रोज शावर लेते हैं, रोज हम फैमिली मेंबर से बात करते हैं, और आपके काम से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है. ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है जो आप रोज करते हो 10-15-20 मिनट के लिए. ठीक है, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जस्ट सेट दिस इंटेंशन टू डू दैट एवर. जब भी आप उसको कर रहे हैं तो सेट द इंटेंशन टू डू दैट विथ फुल फोकस. ठीक है, जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, जब किसी से फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं तो बीइंग 100% देयर, व्हेन यू आर टेकिंग द शावर बीइंग 100% देयर. ठीक है, तो ये एक इंटेंशन हमको सेट करना है. नाउ इनिशियली कंप्लीटली नहीं होगा. ठीक है, दिमाग में दूसरे थॉट्स आएंगे, बट जैसे ही पता चला कि दिमाग में दूसरे थॉट्स आ रहे हैं, अगेन ब्रिंग योर फोकस ऑन दैट एक्टिविटी. ठीक है, माइंड को बोलना है लेट्स बी देयर 100%. ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी के लिए जब आप ट्रेन करोगे माइंड को, यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न ऑफ द माइंड, जो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहता है, वो पैटर्न को हम ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, सो योर माइंड इज गेटिंग ट्रेन टू बी फोकस्ड, और फिर ये हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट करता है, वहां पे भी हमारा फोकस इंप्रूव होता है. ठीक है, सो दिस इज वन सिंपल एक्टिविटी जिसके लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं देना है. यू कैन जस्ट सिंपली इंटीग्रेट दिस इन योर लाइफ. ठीक है, एंड यू कैन ट्रेन योर माइंड टू बी फोकस्ड. ठीक है, और एक साथ बहुत सारी चीजों के लिए ट्राई नहीं करना है, दैट डजंट वर्क. ठीक है, कोई भी एक एक्टिविटी लो एंड ट्रेन योर माइंड फॉर दैट टू बी 100% देयर, एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें इंप्रूवमेंट होने लगेगा. ठीक है, सो दिस इज वन सिंपल वे विच कैन हेल्प अस टू train our mind to be focused and avoid distractions. ठीक है, now for avoiding these mobile distractions, there are some concepts of habit science also जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मेक क्विटिंग इजी.
ठीक है, जो भी हमारा अनवांटेड हैबिट है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का हैबिट है, उसको हमको कम करना है, क्विट करना है, तो मेक क्विटिंग इजी। ठीक है, अभी अगर आपका 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में स्क्रोलिंग में जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप ट्राई करोगे उसको कंप्लीटली बंद करने का, माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा एंड इट विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। ठीक है, 1 दिन 2 दिन मोटिवेशन में आके कर लोगे, बट उसके बाद फिर वापस उसी चीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो द सस्टेनेबल वे इज मेक क्विटिंग इजी। ठीक है, 4 घंटे से पहले 3 घंटे पे लेके आओ, 1 वीक के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 वीक 2 आवर्स, देन नेक्स्ट 1 वीक 1 आवर। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे अगर उसको हम कम करेंगे तो आसानी से हम उसको कम कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ हैबिट साइंस विच वी कैन यूज। दूसरा होता है मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है, जो भी अनवांटेड हैबिट हमारा है उसको करने के लिए हमको उसको डिफिकल्ट बनाना है, तो फिर चांसेस ऑफ डूइंग दैट हैबिट विल रिड्यूस। ठीक है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, स्क्रोलिंग की बात करते हैं, तो देयर आर सम ऐप ब्लॉकर्स, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं, विच डिलेज द ऐप को जो हमको यूज करना है उसको वो डिले कर देता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट। ठीक है, अभी तुरंत अगर हमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, तुरंत अगर यूट्यूब ओपन कर लिया, तो बहुत आसानी से हम उसमें टाइम यूज करते हैं। ठीक, सो देयर आर ऐप ब्लॉकर्स जो आप यूज कर सकते हो, विच विल डिले दैट टाइम। ठीक है, तो हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया, और जैसे हमने जो भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स है उसको डिलीट किया, तो अभी उसको यूज करने के लिए इंस्टॉल करना होगा और फिर यूज करना होगा, तो अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है जो हम यूज कर सकते हैं, मेक इट डिफिकल्ट। और जो पहले भी हमने बात करी कि मोबाइल अगर सामने रहेगा तो बहुत ईजी होता है यूज करना। ठीक है, बट अगर थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा, दूसरे रूम में रहेगा, ठीक है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज दैट। तो ये प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं, मेक इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द मोबाइल। फिर तीसरा एक प्रिंसिपल होता है मेक क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। ठीक है, ये जो फीलिंग हमारे अंदर है स्क्रॉल करने का, रील्स देखने का, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का, इस फीलिंग को हमको अनअट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल तरीका है, दैट राइट डाउन द harmful impact it is creating in your life. So everyone, let's implement this. ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए राइट डाउन इन योर नोटबुक, अभी जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। एवरीवन, लेट्स राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट 1 मिनट। कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपके करियर को, हेल्थ को, रिलेशंस को, लेट्स राइट इट डाउन। एंड लेटर ऑन यू कैन डू दिस इन मोर डिटेल ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज जब हमारे सामने होती है, that how it is impacting your life, then it becomes unattractive। ठीक है, तो इसको आप बाद में डिटेल में भी थोड़ा लिख सकते हैं। एंड अगेन डोंट जस्ट थिंक इन द माइंड, देन डजंट वर्क। लिखना है, हमारे सामने लिखा हुआ होना चाहिए, दैट इज व्हाट वर्क्स। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज चेंज द रूटीन। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा कि लास्ट टाइम व्हेन यू वेंट टू डिस्ट्रैक्शन, तो क्या रीजन था, क्या इमोशन था। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम we get into mobile scrolling to feel relaxed। ठीक है, तो the outcome which you are looking for is relaxation।
ठीक है, तो खुद से सवाल करना है दैट और क्या चीज है जो मुझे हेल्प कर सकती है टू फील रिलैक्स्ड अदर देन मोबाइल. ठीक है, what you are looking for is feeling relaxed. You are not looking for mobile scrolling. ठीक है, तो और क्या तरीका है जिससे आप और रिलैक्स फील कर सकते हो. जैसे स्टार्टिंग में हमने एक एक्टिविटी करी थी टू फील रिलैक्स्ड. ठीक है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, टॉकिंग टू सम फैमिली मेंबर्स, जस्ट connecting with the nature, going for a walk, getting a massage. There are so many different ways to feel relaxed. ठीक है, which are not harmful also, which are not addictive also. ठीक है, तो that is something which you can identify and change the routine. ठीक है, जब भी माइंड में इस तरह का आता है, you feel the need to feel relaxed, then go for the other alternatives which will give you the same outcome, feeling relaxed, and which is not harmful, which is not addictive in nature. ठीक है, तो ये हैबिट साइंस के प्रिंसिपल है जो हम यूज कर सकते हैं, which can help us to avoid getting into the mobile distraction. Now the third challenge in terms of focus and distraction is lack of clarity. ठीक है, when we are not very clear कि हमको क्या exactly करना है, क्यों करना है, then also our mind gets into distraction. तो माइंड को क्लियर मैसेज देना जरूरी है. वी शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या करना है. सो वी नीड टू एनहेंस द क्लियरिटी. ठीक है, एंड इन दिस वी कैन गेमिफाई दिस ऑल्सो. ठीक है, हम इसको गेमिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, उसमें क्या करना है, एवरी डे जस्ट राइट डाउन द टॉप 3 टास्क. ठीक है, आज के लिए आपके क्या 3 इंपॉर्टेंट टास्क है उसको लिखना है. ठीक है, एंड देन चैलेंज योर माइंड, चैलेंज योर सेल्फ कि जब ये 3 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे देन ओनली यू विल गेट इनटू मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल स्क्रॉलिंग. ठीक है, तो उसको एज अ रिवॉर्ड यूज करना. अभी तो रैंडमली हो रहा है. ठीक है, तो उसको चेंज करना है. यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू रिवॉर्ड, यू कैन गेमिफाई दिस, यू कैन प्ले दिस गेम विद द माइंड कि पहले ये 3 इंपॉर्टेंट काम है, इसको कंप्लीट कर लेना है, एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ टू लिटिल बिट ऑफ मोबाइल जो भी एंटरटेनमेंट है, स्क्रॉलिंग है, फॉर दैट थिंग. ठीक है, तो ये माइंड को क्लियर मैसेज देना जरूरी है कि क्या टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क है. यू कैन ब्लॉक स्पेसिफिक टाइम ऑल्सो फॉर दैट, किस टाइम पे उसको करना है एंड किस टाइम पे आपको मोबाइल यूज करना है, उसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर सकते हो. ठीक है, ताकि वो रैंडमली ना हो, इट शुड बी अ कॉन्शियस एफर्ट. और उसको आपने रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो देन अगेन इट विल हेल्प यू to complete your important task on time. So this is also something can help us to enhance the clarity to avoid getting into distractions. Okay. So these are the things I wanted to share with you, and thank you everyone for being here. This is my WhatsApp number. So if you have any queries later on, if you have any inquiries, if you need more support, then I help people for the long-term support also. So you can drop a message on this number.